Welcome, students. So, in the previous lecture, we have completed the part 1 of chapter 2, The Sound of Music, from the book Beehive, and the chapter was all about a musician named Evelyn Glennie. So, now we are going to start the story about Bismillah Khan, a famous renowned musician, Shehnai player, Bismillah Khan, and this is the second part of the chapter. So let's begin. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding of a similar occasion or function. So, whenever we think of Shehnai, the first thing that will come of a scene, of a wedding scene where a musician is playing Shehnai or any kind of similar spiritual or very important function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. So whenever you think about Shehnai, the first name that comes to our mind is Ustad Bismillah Khan, the master of this instrument, the master of Shehnai instrument, Ustad Bismillah Khan. So let's begin the chapter. So the first paragraph talks about the history, the how this Shehnai instrument came into picture. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. So ये कब की बात हो रही है जब एम्परर औरंगजेब इंडिया में राज किया करते थे उस वक्त उन्होंने क्या किया था पुंगी नाम के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बैन कर दिया था उनके रॉयल रेजिडेंस में बजाने के लिए क्यों क्योंकि उस उनको लगता था कि पुंगी से बहुत ही अनप्लेजेंट सा साउंड आता है उसका जो आवाज है वो इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज निकलती है वो उतने कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Now, what does reeded mean? Wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet, etc. जैसे flute है, clarinet है. So there is you have to play those instruments with wind from with the help of your mouth, and those have various holes with which it gives different sounds. So that's a kind of पोंगी वॉज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो जो रीडर नॉइज मेकर्स थे जो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उनके लिए पुंगी बजाना बहुत ही आम बात थी फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड सबको लगा था जब एम्परर औरंगजेब ने ये बैन कर दिया था तब सबको लगा था कि थोड़े टाइम बाद शायद पुंगी को अहमियत दी जाएगी a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से जो एक बार्बर थे उन्होंने क्या सोचा कि पुंगी को चलो थोड़ा मॉडिफाई किया जाए और वो जो बार्बर थे उनका रॉयल पैलेस में भी बहुत आना जाना था He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने क्या किया एक ऐसा पाइप लिया जिसमें थोड़ा सा बड़ा होल था और जो पुंगी से थोड़ा ज्यादा बड़ा और चौड़ा था and made 7 holes on the body of the pipe और वो जो पाइप बनाया उसके ऊपर उन्होंने 7 holes बनाए when he played on it closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were produced. So जब उन्होंने ये बजाया एक होल को बंद किया एक दूसरे होल को बंद किया so उससे बहुत ही सुरीली आवाज निकलने लगी He played the instrument before royalty and everyone was impressed. So उन्होंने क्या किया जो बार्बर थे उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने नया बनाया उन्होंने रॉयल फैमिली के सामने किंग औरंगजेब के सामने उन्होंने ये बजाया और सबको बहुत ही पसंद आया The instrument so different from the pungi had to be given a new name. So ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो पुंगी से बिल्कुल ही अलग है उसको डेफिनेटली एक नाम देना चाहिए As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, that is barber, the instrument was named the Shehnai. So ये Shehnai नाम कैसे पड़ा
क्योंकि ये पहली बार ऐसा कहा जाता है, ये स्टोरी है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये पहली बार शाह के चैम्बर में बनाया गया था और एक नाई ने, एक बार्बर ने उसे बजाया था, इसलिए उसका नाम पड़ा शहनाई। और ये आप देखेंगे यहाँ पे पुंगी और शहनाई किस तरह से अलग है। The sound of the shehnai began to be considered auspicious. Auspicious का मतलब क्या है? Promising to bring good fortune. सो शहनाई के जो साउंड है, शहनाई की जो आवाज है, उसको बहुत ही शुद्ध, उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और क्योंकि उसको बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, इसीलिए ये आज तक सब बहुत कई जगह मंदिरों में ये बजाया जाता है। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ साइड की जो वेडिंग्स है उसमें भी ये बजाया जाता है, मतलब इसके बिना शादी अधूरी होती है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब यह है, यहाँ पे क्या है? विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जिसके बिना कुछ भी चीज अधूरी है। इसलिए शहनाई के बिना नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ऐसा माना जाता है कि शादी अधूरी है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और traditional ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। नौबत का मतलब क्या होता है? 9 जो इंस्ट्रूमेंट्स है, 9 इंस्ट्रूमेंट्स को एक रॉयल कोर्ट्स में स्पेशल जगह दी जाती थी, तो शहनाई भी उनमें से एक माना जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो अभी तक, बहुत कुछ टाइम पहले तक ही इसको, शहनाई को सिर्फ मंदिर में और शादियों में यूज किया जाता था। The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. So ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो मंदिरों से, शादियों से, जो आम आदमी की जिंदगी में लाया गया, क्लासिकल स्टेज में लाया गया, उसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो आगे हम पढ़ेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in ancient estate of Dumrao in Bihar. So बिस्मिल्लाह खान कहाँ से थे? बिहार में दुमराव करके एक जगह है, वहां से थे। तो जब वो 5 साल के थे तब वो नॉर्मली दूसरे बच्चों की तरह गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.2 kg, a prize given by the royal Maharaja. So जब वो बचपन में छोटे थे तब वो क्या करते थे? वो उनके घर के पास ही नजदीक में बिहार जी टेम्पल था, वहां पे क्या गाया करते थे? चैता करके एक भोजपुरी गाना है, वो गाया करते थे। और वो गाने के बदले उनको वहां के जो लोकल महाराजा है उनको एज अ प्राइज क्या देते थे? बहुत बड़ा लड्डू, जिसका वेट क्या होता था? 1.25 kg. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian awards in India, the Bharat Ratna. अब ये जो हम बात कर रहे हैं, छोटे से बिस्मिल्लाह खान की बात कर रहे हैं, वो करीबन 80 साल पहले की बात है। और ये जो छोटा सा बच्चा था, वो हमारे इंडिया में सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो जीता है उन्होंने, भारत रत्न जीता है उन्होंने। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. So बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ है? 21st March 1916, और वो बहुत ही बिहार के वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली थी, वहीं से वो बिलोंग करते थे। His grandfather Rasul Bux Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. So उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे, तो जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर किंग के शहनाई नवाज थे, मीन्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल नोन शहनाई प्ले करते थे। His father Paigambar Bucks and the other paternal ancestors were also great शहनाई players. So उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो पापा थे वो भी बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे, और सिर्फ वही नहीं, उनके जितने भी, उनके फादर के जितने भी भाई थे, उनके दादाजी थे, सभी शहनाई बजाते थे।